11 जून 1999, 21 साल पहले आज ही के दिन, आज ही के समय, Indian Army was getting ready to launch its final assault on Tololing. तोलोलिंग के ऊपर जीत कारगिल की लड़ाई में एक बहुत डिसाइसिव मोमेंट था. जय हिंद. I am Captain Yashika Hatwal Tyagi, the first lady officer from the logistics wing of Indian Army to be part of Battle Zone in Operation Vijay, popularly known as the Battle of Kargil. Welcome to Shaurya Tales. It is a series of awe-inspiring stories. The stories that would make you sit up, make your spine straight. The stories that would give you a glimpse of the mind and the workings of Indian Army, the timeless traditions and trivia. शौर्य टेल्स के आज के एपिसोड में चलते हैं तोलोलिंग के असॉल्ट पे. इस कहानी को हम 2 एपिसोड्स में पूरा करेंगे because there is so much in this story. The stories of heroes, their valor, their gut, their glory, and their sacrifice, and finally their victory. So, my dear friends, let us get ready, brace ourselves, and let us go to Tololing. The first assault was brought by 18 grenadiers. The day was 22nd May. The first assault, when it was launched, we actually were not sure that how much is the enemy strength. शायद टेररिस्ट है, शायद मुजाहिदीन है, लेकिन जब ये असॉल्ट टीम ऊपर पहुंची, they realized that these are the trained soldiers of the Northern Light Infantry of Pakistan Army. The assault was great, but enemy was very well fortified, very well entrenched. They had automatic guns, they had machine guns. Their bunkers were very, very ready for a long time battle. The first assault was not as successful. Commanding officer, 18 Grenadiers, requested the higher headquarters for the support of Indian Air Force. So the 4 assault helicopters, that is the Mi-17s, were brought in. 4 helicopters, when they came and when they were entering into the battle zone, something very untoward happened. A Stinger missile came from the Pakistani army and destroyed our aircraft. This chopper crashed against the hills. So the second attack by the Indian Air Force was brought to an end. Now, strategies had to be reworked because we are not going to leave Tololing to Pakistanis. Strategies were changed. Now a 3-pronged attack was brought in. 3 टोलियां तैयार की गई. Major Rajesh Adhikari, Captain Sachin Nimbalkar, Lieutenant Balwan Singh, the 3 officers took 3 platoons from 3 different directions. When they came, they were ready to take on the Pakistanis. मेजर अधिकारी की टुकड़ी सबसे पहले तोलोलिंग के टॉप पर पहुंची. 50 मीटर दूर दुश्मन था, पहला बंकर. मेजर अधिकारी की टोली इतनी स्टेल्थ से पहुंची कि पाकिस्तानी को पता ही नहीं चला कि इंडियन आर्मी उनके दरवाजे तक आ गई. He went forward. Just about 10 meters, he opened the fire and killed 2 Pakistanis. The
first bunker was captured, but by then Pakistanis got alert. उन्होंने अपनी 4 मशीन गन खोल दी और मेजर अधिकारी के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया. His body was there, but Captain Sachin Nimbalkar, who was doing the ascent from the next side, he could not retrieve his body. दुश्मन की गोलीबारी इतनी तेज थी कि कैप्टन निम्बालकर और उनकी टुकड़ी जो छोटे छोटे पत्थरों के पीछे किसी तरह से कवर लेकर गोलीबारी कर रहे थे, वो मेजर अधिकारी की बॉडी को वापस लाने में असमर्थ थे. 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक कैप्टन सचिन निम्बालकर की टुकड़ी वहीं डटी रही और पाकिस्तानियों की गोलीबारी का जवाब देती रही. धीरे धीरे एम्यूनिशन खत्म होने लगा. एक समय तो ऐसा आया जब चट्टान के क्रैक से पाकिस्तानी सिपाही और कैप्टन सचिन निम्बालकर आई टू आई कांटेक्ट में आए और उन्होंने मजाक में चिढ़ाने के लिए चैलेंज दिया कि भाईजान बाहर आइए और अपने ऑफिसर की बॉडी को ले जाइए, हम फायर नहीं करेंगे. कैप्टन निम्बालकर का खून खौल गया. खून का घूंट पीते हुए उन्होंने कहा, शायद आज ये दिन नहीं है, पर मैं अपने ब्रदर ऑफिसर की शहादत का बदला इन पाकिस्तानियों से जरूर लूंगा. अब दिन आया चौथे असॉल्ट का. 2 जून का दिन था. लेफ्टिनेंट कर्नल विश्वनाथ, जो कंपनी के सेकंड इन कमांड थे, वो असॉल्ट टीम लेकर ऊपर आए. लेकिन जैसे ही वो ऊपर आए और उनको लेफ्टिनेंट बलवान सिंह ने जमीनी हकीकत का जायजा दिया, कहां बंकर हैं, कहां दुश्मन की मशीन गन लगी है और कहां हमारे मेजर अधिकारी का पार्थिव शरीर बाहर पड़ा है, जैसे खून खौल गया, जैसे खून खौल गया. लेफ्टिनेंट कर्नल विश्वनाथ ने अपनी वेलफेयर की चिंता ना करते हुए, अपने शरीर की चिंता ना करते हुए, he just ordered his men to give him cover fire and he rode ahead. He walked, guns blazing. उन्होंने गोलीबारी करते हुए अपनी बंदूक से फायर खोलते हुए दुश्मन की तरफ बढ़ते चले गए और कोशिश करी कि मेजर अधिकारी के शरीर को वो पत्थरों की ओट में वापस लाएं. लेकिन दुश्मन के मशीन गन्स ने उनके ऊपर अटैक किया. उनके शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिसमें गोली ना लगी हो. मेजर विश्वनाथ ने एक अव्वल दर्जे के फौजी होने का सबूत दिया. अपनी जान की फिक्र ना करते हुए सिर्फ अपने फौजी भाई को बचाने के लिए और उसके शरीर को वो इज्जत दिलाने के लिए जो एक शहीद सिपाही को मिलनी चाहिए, उसकी दिशा में वो आगे बढ़े थे. चौथा अटैक भी फेल हुआ. यह समय था रीग्रुप होने का, फ्रेश टीम्स के साथ नई स्ट्रैटेजीज को डिसाइड करने का. और फिर 2 राजपुताना राइफल को यह काम दिया गया कि वो नया स्ट्रैटेजी प्लान करें, क्योंकि तोलो लिंक तो हम लेकर रहेंगे. 18 ग्रेनेडियर्स का वॉर क्राई है, विजय या वीरगति. वीरगति को प्राप्त होने वाले महावीर चक्र मेजर अधिकारी और लेफ्टिनेंट कर्नल विश्वनाथ को हमारा सैल्यूट. यह देश उनका ऋणी है. कल के एपिसोड में फाइनल असॉल्ट में 2 राजदीप के साथ वीर भोग्या वसुंधरा की ललकार लगाते हुए पाकिस्तानियों को छठी का दूध याद दिलाएंगे. मिलिएगा मुझे कल फाइनल असॉल्ट तोलोलिंग. जय हिंद.